ریجن میں تیز آندھی اور بارش، مظفر گڑھ، بہاولپور، خانیوال اور ڈی جی خان میں 52 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ ملتان کے 132 kV میکرو گرڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی معطل، مختلف علاقوں میں درخت تاروں پر گرنے اور پول ٹوٹنے کی اطلاعات، چیف ایگزیکٹو میپکو کی سٹاف کو سسٹم بحالی کی ہدایات جاری۔ سٹاف کو سسٹم بحالی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ میپکو ریجن میں تیز آندھی اور بارش، مظفر گڑھ، بہاولپور، خانیوال اور ڈی جی خان میں 52 فیڈر سٹرپ کر کے ملتان کے 132 kV میپکو گرڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی معطل، مختلف علاقوں میں درخت تاروں پر گرنے اور پول ٹوٹنے کی اطلاعات، چیف ایگزیکٹو میپکو کی سٹاف کو سسٹم بحالی کی ہدایات جاری۔ ملتان کارپوریشن میں تقرر تبادلے، سی ای او میونسپل کارپوریشن ملتان رانا محبوب عالم کا تبادلہ، رانا محبوب عالم کو لوکل گورنمنٹ آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، محمد اقبال خان ڈپٹی چیف میونسپل کارپوریشن ملتان تعینات، محکمہ لوکل گورنمنٹ نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ملتان کارپوریشن میں تقرر و تبادلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں، سی ای او میونسپل کارپوریشن ملتان رانا محمود عالم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ رانا محمود عالم کو لوکل گورنمنٹ آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، محمد اقبال خان ڈپٹی چیف میونسپل کارپوریشن ملتان تعینات کر دیے گئے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا مشن، پلاسٹک بیگز پر پابندی، پلاسٹک بیگز استعمال کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کا آخری روز۔ ملتان میں 6 جون سے پلاسٹک بیگز فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب سرکار متحرک، پلاسٹک بیگ استعمال کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کا آخری روز۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ کسی کے کاروبار کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں، پلاسٹک بیگز انڈسٹری سے منسلک بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ویڈا بس ہے۔ مطالبہ یہی ہے کہ جو چیز ہے اچھی ہے، بہتر چل رہی تھی، اور یہ جو شاپر تھا اتنا نقصان نہیں تھا جتنا یہ سوچا جا رہا ہے۔ انہیں یہ تو نظر آ رہا ہے ماحولیات کی آلودگی، لیکن جو ان کی اپنی بسیں چل رہی ہیں ویڈا بس، اس کے حوالے سے انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اتنا گندا دھواں ہے، وہ چلتی ہے روڈوں پہ، مٹی خاکہ اتنا اڑا رہی ہے۔ متبادل حل گورنمنٹ نکالے نا، اگر وہ بند کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا متبادل حل ہی نکالے، کیونکہ یہ وہی پابندی لگا رہی ہے حکومت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کا کہنا تھا کہ کل سے شاپر اور پلاسٹک بیگ فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ 10-15 دن جو بھی ان کو دیے تھے ہم نے، اس میں آپ نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ چینج کرنی ہے، اور ہم نے تاجروں کو بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس کو استعمال کو ترک کرنا ہے۔ اس وقت جو ہماری ڈائریکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ 75 سے مائکرون سے زیادہ کا شاپنگ بیگ استعمال ہوگا جو بایو ڈیگریڈیبل ہے، اور کیمپین کے سٹارٹ ہونے کے بعد سے اب جو بھی کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے گا ان کو بھاری جرمانے بھی ہوں گے۔ معروف سرجن ڈاکٹر صفدر ہاشمی کہتے ہیں کہ پلاسٹک انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پلاسٹک بیگ کے زہریلے مواد سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر جب ہم کچرا جلاتے ہیں تو اس جلانے سے بھی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات بعض چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں اشیاء لاتے ہیں تو وہ بھی اس کو نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے اندر جو زہریلے مواد ہیں یہ عموماً کارسینوجینک ہیں، یہ کینسر کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ تاجروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس کا کوئی متبادل حل نکالا جائے، نہ کہ ملک میں بے روزگاری پیدا کی جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جنید انور اور عمران نواز کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا مشن، پنجاب حکومت نے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔ جنوبی پنجاب بھر میں انتظامیہ پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے متحرک ہوگی۔ انتظامی افسران نے شہریوں سے پلاسٹک بیگز کا استعمال ترک کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب بھر میں پلاسٹک بیگز کے خاتمے کا مشن، بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے متحرک، شہریوں کو اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے ختم نبوت چوک پر کیمپ لگایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تاجروں کے ہمراہ آگاہی کیمپ میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام سے پلاسٹک بیگز کا استعمال ترک کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا پلاسٹک بیگز کے استعمال پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو پلاسٹک ابھی یوز ہو رہا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو پلاسٹک کی بوتل ہے یہ کم از کم 60 سال لیتی ہے ڈائلیوٹ ہونے میں۔ تو اسی کیمپین کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ کا، جو ہماری سینئر منسٹر ہیں، ان کا انیشیٹو ہے کہ انشاءاللہ جو باقی مہذب معاشرے ہیں ان کی طرح ہم نے پاکستان کو بھی اور خاص طور پہ پنجاب کو پلاسٹک فری کرنا ہے۔
रहीम मियां खान में प्लास्टिक फ्री कैंपेन का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आमिर इरशाद रहमानी मैदान में आ गए और दुकानों पर प्लास्टिक के मुतबादिल बैग्स तकसीम किए। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि 5 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की जा रही है। प्लास्टिक बैग्स के इंसानी सेहत पर असरात बारे आगाही दी जा रही है। खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्लास्टिक बैग सेहत के लिए नुकसानदेह और सीवेज सिस्टम को ब्लॉक करते। मियांवाली के साबिक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अमजद बुखारी का कहना है प्लास्टिक बैग से सफाई के मसाइल पैदा होते हैं। प्लास्टिक बैग सीवेज सिस्टम को नाकारा कर देते हैं। सीवेज लाइन में प्लास्टिक बैग्स फंस जाने से सफाई मुश्किल से होती है। रवानी मुतासर होने से गटरों से गंदा पानी बाहर निकल आता है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी हुकूमत का एहसन इक़दाम है। हमारी सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती। इसके अलावा हमारी जो रोड्स हैं वहाँ पे हम झाड़ू वगैरह सफाई करते हैं, लेकिन शापर आने की वजह से वो हमारा बिल्कुल वो मंजर पेश करते हैं कि जहाँ पे सफाई कभी हुई नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। प्लास्टिक बैग्स शहर का सीवेज सिस्टम भी ब्लॉक कर सकते हैं। म्युनिसिपल हुकाम के मुताबिक सीवेज का मसला अरसे से चला आ रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से सीवेज नालों से प्लास्टिक बैग्स मिले। प्लास्टिक बैग से अंदरून शहर का पूरा सीवेज सिस्टम बैठ गया था। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी खुशाइंद है। अभी पंजाब में मैपको मुलाजमीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, दफ्तरों को ताले लगाकर मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर आके कहा कि मैपको को प्राइवेट हरगिज नहीं होने देंगे। कानपुर में मैपको मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगा दी। हुकूमती फैसले के खिलाफ मैपको मुलाजमीन का एहतजाज। जोनल चेयरमैन RO विंग फिदा हुसैन चांडिया समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। फिदा हुसैन चांडिया का कहना था कि मैपको को हरगिज प्राइवेट नहीं होने देंगे। मैपको मुलाजमीन को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। इस मौके पर मलिक कैसर जमील, चौधरी काशिफ, मलिक हैदर अली और दीगर का कहना था कि हुकूमत मैपको मुलाजमीन को रीडिंग के लिए मोबाइल फोन समेत दीगर सहूलियात नहीं दे रही। हमारे बुनियादी हकूक फौरी दिए जाएं। हमने पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी किया है। हमारे मुतालबात ये थे कि हमें जो है ना, जो अभी बजट आने वाला है इसमें हमारी तनख्वाहों और पेंशन में महंगाई के लिहाज से इजाफा किया जाए। दूसरी हमारा ये था कि जो हम इदारा बेचने का प्रोग्राम बना रखा है गवर्नमेंट ने, ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना है। बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सर्कल ऑफिस में मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफा और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। नेपाल में भी मैपको की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन के मुलाजमीन का एहतजाज। डिविजनल चेयरमैन की क़यादत में काफिला मुल्तान की तरफ रवाना। मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा बजट में मैपको मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने के साथ तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। चीफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सीनियर कमांडेंट डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की नॉन कस्टम बेड सामान सखी सर्वर में छापा मारते हुए पकड़ लिया। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करें। आइए आपको लिए चलते हैं। रहीम जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की खसूसी हिदायत पर डिफरेंट टीम्स जो है वो तश्कील दी गई थी, जिनका काम एंटी स्मगलिंग और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक करना था। आज स्पेसिफिक निशानदही पर एक इलाका बेरी वाला है सखी सर्वर के करीब, जिसमें रेड किया गया तो वो वहाँ पे काफ़ी 4 कोई कमरे थे जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी का जो सामान है वो मौजूद था, जिसमें शापर है, छालिया है, सिगरेट है, इसके अलावा दीगर टायर्स नॉन कस्टम सामान बाकी भी मौजूद था, जो कि कन्फिस्केट किया गया है, जो हम 3 ट्रालियों पे भी भर के ले आए हैं, जिसके इन्वेंट्री अभी बना रहे हैं। तो ये जिसकी मालियत तकरीबन करोड़ों में है। इंशाल्लाह जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। किसी किस्म की कोई भी जो नेगलिजेंस है वो बर्दाश्त नहीं की, और इस तरह की जो भरपूर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। भक्कर में तहसीलदार का दफ्तर करप्शन का गढ़ बन गया। तहसीलदार का बगैर रिश्वत काम करने से साफ इनकार। सालीन तहसीलदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बखर में तहसीलदार ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। तहसीलदार का बगैर रिश्वत शहरियों के काम करने से इनकार। रिश्वत देने वालों की रजिस्ट्री प्राइवेट दुकानों पर जाकर करने लगा। कई दिन चक्कर लगाने वाले सैलीन का पारा भी चढ़ गया और एहतजाज शुरू कर दिया। सैलीन का कहना था कि दूर दराज से किराए भर कर काम कराने के लिए आते हैं मगर काम नहीं होते। इन्होंने इल्जाम लगाया कि रजिस्ट्री वाले 3000 रिश्वत पहले जमा कराने का मुतालबा करते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि तहसीलदार जमशेद गुलजार रिश्वत देने वालों के काम मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर कर देता है मगर पैसे ना देने वालों को चक्कर से चक्कर लगवाए जाते हैं।
खुद वाले दिन से हम आ रहे हैं जी, हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही, कागजात मुकम्मल है, फाइल मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है, हम दफ्तर में बैठते हैं, आगे साहब नहीं आता। रजिस्ट्री महर बोलता है 3000 रुपये जमा कराओ जी, फिर फाइल दो, फिर उसके बाद आपके बयान होंगे। रोही के राब्ता करने पर तहसीलदार जमशेद गुलजार ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शहरियों ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर सगोदा डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर बखर, अली अकबर भिंडर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बखर। अहमदपुर शर्किया में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सेंटर गैर फाल, गर्मी और हब्स से परेशान खवातीन इमदादी रकम लेने के लिए ख्वार होने लगी। अहमदपुर शर्किया में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सेंटर 3 दिन बाद भी फाल न हो सके। इमदादी रकम लेने वाली खवातीन परेशान। रोही पर खबर नशर होने के बाद रकम चलाई तो गई, मगर कैब में आई 5% खवातीन को भी रकम न मिल सकी। दुकानदार रकम कटौती के लिए बार बार लिंक डाउन और फिंगरप्रिंट्स मैच न होने का बहाना बनाकर खवातीन को परेशान करने लगे। खवातीन का कहना है कि डिवाइस मालकान से बात की जाए तो वो बात करने से इनकार कर देते हैं। ऐसी अहमदपुर केड़ा में कुडसो किवा सा जलील थे खड़े से देंदे वे तडसो नी वे देंदे सा कुडसो चा ये तरीका तो कानी सवेर दे 7 बजे न निकले खड़े पानी ना मिलता ना कोई गाल ना बात देंदे वे तडसो। खवातीन का कहना है कि वो 3 दिन से आ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शदीद गर्मी में पानी का भी इंतजाम तक नहीं। 3 दिन से हम इधर आ रहे हैं, एसी इधर आकर चेक नहीं कर रहे। एसी को आना चाहिए, इधर चेक आके करें, देखें इधर आके। यहाँ सेंटर सही तरह तरीके से नहीं चल रहा, इधर आके केस चलवाएं या कोई इंतजाम करें या हमें बताएं, यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। मुस्तैक खवातीन का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर को नोटिस लेना चाहिए ताकि इमदाद लेने वाली खवातीन की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन महर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रोही, अहमदपुर शर्किया। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी और मार्केट के निर्खों में भी फर्क बराबर। सरकारी निर्खनामे में अदरक 540 और लहसुन 260 रुपये फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 450 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जिले इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 16 रुपए महंगा होकर 540 और लहसुन 10 रुपए बढ़कर 260 रुपए फी किलो हो गया, मगर मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 180, अरवी 250, भिंडी 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी नरखनामे में अरवी 180, भिंडी 120 और टिंडे 102 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में प्याज 140, हरी मिर्च 130, आलू 80 और टमाटर 55 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में आलू 66, हरी मिर्च 62, प्याज 90 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आलू बुखारा 600, फालसा 300, आड़ू 200 और सेब 250 से 400 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन है। लोकाट 200, तरबूज 50 और गर्मा 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखनामे में खुबानी 180, तरबूज 30 और गर्मा 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है। खरबूजा 100, पपीता 300 और चीकू 220 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मुख्तलिफ अक़साम के आम 130 से 350 और अंगूर 1600 रुपए फी किलो है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सब्जियों फलों की सरकारी नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान पोस्ट की शहरियों के लिए नई सहूलत। मुल्क भर की तरह जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान को भी इतवार के रोज खुला रखने का फैसला रख लिया गया है। शहरी अंदरूनों बैरून मुल्क पार्सल भिजवा सकेंगे। मिनी ऑर्डर्स, यूटिलिटी बिल्स और अर्जेंट मेल सर्विस की सहूलत भी दस्तयाब होगी। डायरेक्टरेट जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद का एहसन इक़दाम। मुल्क भर के 85 जनरल पोस्ट ऑफिस की तरह मुल्तान जीपीओ को भी इतवार के रोज खुला रखने का फैसला। इतवार के रोज दफ्तर में कायम सिंगल काउंटर से शहरी खिदमात ले सकेंगे। चीफ पोस्ट मास्टर अस्मा हफीज का कहना था कि छुट्टी के रोज शहरी अंदरून और बैरून मुल्क पार्सल भेज सकेंगे। अर्जेंट मेल सर्विस, मनी ऑर्डर, यूटिलिटी बिल्स और दीगर अहम सहूलियात भी मैसर होंगी। हमने काउंटर स्टार्ट किया संडे को कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते थे जो चाहते थे कि हम संडे को भी काउंटर ओपन रखें, लाइक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो पाकिस्तान पोस्ट ने थ्रू आउट द कंट्री 85 जीपीओज में ये इनिशिएटिव लिया कि संडे को भी काउंटर ओपन होगा, जिसमें डिफरेंट सर्विसेज सच एज रजिस्टर्ड मेल एंड यूएमएस, यूटिलिटी बिल कलेक्शंस, ये ऑफर होंगी सर्विसेज। सीनियर पोस्ट मास्टर मुल्तान शाहिद यूसुफ ने कहा कि शहरियों का ये मुतालबा भी पूरा कर दिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट कदीम और बाएतमाद इदारा है। शहरियों ने भी इस नए इक़दाम का खैर मकदम किया। काफ़ी फ़ायदा है इसका। असल में हम लोग स्टूडेंट्स हैं, जैसे कॉलेजेस में हमारी क्लासेस होती हैं तो संडे को फ्री होते हैं अक्सर, तो संडे को काफ़ी मुश्किल होती थी कि अब कॉलेज वाले डे में आके और आप सबमिट करवाएं तो प्रॉब्लम होती थी। इतवार का ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया इन्होंने कि संडे में आके हम इजीली आप पार्सल सबमिट करवा सकते हैं।
GPO में एतवार के रोज सिंगल काउंटर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। शहरियों की आगाही के लिए दफ्तर में बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी और कैब इंटरनेशनल के ज़ेरे इंतजाम एक रोज़ा आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आगाही वर्कशॉप का मकसद बदलते मौसमी हालात में ऑर्गेनिक कपास के हवाले से हिकमत अमली तैयार करना था। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी और कैब इंटरनेशनल ने एक रोज़ा आगाही वर्कशॉप का एहतमाम किया। आगाही वर्कशॉप का मकसद बदलते मौसमी हालात में ऑर्गेनिक कपास के हवाले से हिकमत अमली तैयार करना था। नायब सदर PCCC डॉक्टर यूसुफ जफर की ज़ेरे सदारत आगाही वर्कशॉप में ज़राई यूनिवर्सिटी समेत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से कपास के माहिरीन ने शिरकत की। नायब सदर PCCC डॉक्टर यूसुफ जफर का कहना था कि नामियाती कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है नामियाती कपास का ज़ेरे काश्त रकबा 1 लाख एकड़ से ज्यादा हो। जितने स्टेक होल्डर्स हैं हमने उनको यहाँ इनवाइट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सूबों से वो लोग आए हैं और वो ऐसे जो है ना वो सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन पाकिस्तान में उसका जो है वो सस्टेनेबिलिटी आए और उसका एरिया भी जो है ना हम 1 लाख एकड़ तक ले जाना चाहते हैं। वर्कशॉप के शुरुका का मानना था कि कपास की नामियाती काश्त के साथ साथ इसके लिए मुनासिब बायोपेस्टिसाइड्स और दीगर इकदाम करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से तो इसमें जितने भी पब्लिक, प्राइवेट या गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उन सभी को हमने इन्वाइट किया है और मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनिक कॉटन है उसको फ़रोग़ दिया जाए। कि पाकिस्तान जो है ना ये क्योंकि कॉटन में पाकिस्तान के अहम मकाम है और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलें कि भी अगर प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलता है तो ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल साबित हो सकता है। जिस एरिया में हम लगा सकते हैं जोनिंग होनी चाहिए जो इसके लिए सूटेबल एरिया, और सेकंड ये है कि हमें फिर उसके लिए फार्मर्स को रजिस्टर्ड करना चाहिए। तीसरा है कि हमें इन्हें सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए फार्मर्स को, तो इसकी हमें फिर सक्सेस मिल सकती है। कपास के मुहक्किकीन ने आलमी मंडी में नामियाती कपास की अहमियत और बेहतर मैनेजमेंट बारे सिफारिशात पेश की। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।